Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about sociocultural theory of development, how it concerns how it concerns with English language or second language acquisition. First one, the presenter of theory or presenter of this theory is the Vygotsky. Or Vygotsky, the first one who present the concept of socioculture and the concept of the association of socioculture with the second language acquisition. This theory stated that students learn through social interaction and their culture. According to Vygotsky, he narrates that the students learn the second language acquisition through social interaction and their culture. If there is no social interaction and there is no cultural values, he or she is not in a position to learn second language learning or even that any language of the universe. It is necessary for a learner or it is necessary for a language learner to have the interaction with society as well as their culture. If there is no culture and if there is no society, one can not be in a position to learn a language, or one can never ever learn any language if there are missing these two things. First one, society, and second one is culture or the interaction of the culture. Central factors of cognitive development. We have three different aspects that support this concept of sociocultural languages. Vygotsky believed in the crucial role of culture played on the cognitive development of children. He clearly expressed expressed his view that if there is no culture, there is no language. If a child or if a person want to learn any language, necessary to interact with the culture or necessary to have a culture of that specific language or that we want to learn or that he or she want to learn. Vygotsky looked into the wide range of experience that a culture would give to a child, और यहाँ पर वो तमाम बातें इंटरप्रेट करना चाहता है जो एक कल्चर से एक स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं, एक कल्चर को एक अडल्ट से या एक बच्चे को मिल सकती हैं. According to Vygotsky, according to Vygotsky, culture is much more important, or society is as well much more important for the learning or for the development of any cognitive society or any cognitive aspect of that languages. Second thing, to whom or to word Vygotsky gave importance, that is social interaction. Vygotsky gave more weight on the social interaction than contribution or than to contribute to the development of individuals. Individuals can do nothing except to get the one thing that is his or her own personality, but the social interaction might be possible to play a wide role in the learning aspects. एक पर्सन जो है वो अपनी जात के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और एक पर्सन अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकता. बट इफ he or she wants to learn a language, definitely the social interaction is much more important than the personality of individuals. तो यहाँ पर social interaction जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लर्निंग एस्पेक्ट्स के लिए. तो विगॉट्स्की कहता है द फर्स्ट थिंग दैट इज culture and the second thing that is social interaction. Vygotsky emphasizes that effective learning happens through the participation in social activities. If one does not participate in any social activity, how can he or she learn the aspect of that society to which or to word he does not participate or he did not participate? जिस एक्टिविटीज में परफॉर्म नहीं करता, according to Vygotsky, no one capable enough to learn a language or to learn the society aspect. In third level, at the third steps, Vygotsky say that language opens the door for learner to acquire knowledge that others already have. One person has a knowledge and second person want to learn that knowledge. Vygotsky, according to Vygotsky, it is necessary to have a language of specific people to whom or to want or from them we want to learn a language. एक पर्सन के पास इल्म है, दूसरा वो सीखना चाहता है, दूसरे को पहले पर्सन का इल्म सीखने के लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है. Might be possible
जिस लैंग्वेज में वो कल्चर है, जिस लैंग्वेज में वो इंफॉर्मेशन है, अगर उसे वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे वो लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी जो इंफॉर्मेशन वो हासिल करना चाहता है. नो वन capable enough to learn any awareness or any knowledge if he or she does not have any language. अगर उसके पास वो लैंग्वेज नहीं है तो वो नॉलेज को भी सीख नहीं सकता. पहले विगॉट्स की कल्चर पर इंपॉर्टेंस देता है कि कल्चर की इंपॉर्टेंस ऐसे ही है जैसे कि आम पर्सन की लगा लो, लेकिन आम पर्सन जो है वो कभी भी कोई चीज हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो कल्चर्स की बात नहीं करता. यहाँ पर मुझे वो प्लेटो का कॉन्सेप्ट याद आ जाता है. प्लेटो कहता था कि अगर एक पर्सन सोसाइटी से कट ऑफ रहता है, इफ अ पर्सन कट्स हिमसेल्फ फ्रॉम अ सोसाइटी, ही इज नॉट अ मैन. वो इंसान नहीं हो सकता. आइदर ही इज जस्ट लाइक गॉड हैविंग अ स्मॉल जी, देवता, or he is insane. If a person does not has or have any contact with society, or if he lives himself alonely in the forest or without the society, he is not a man. Either he is a god just like devata, or he is a mad or या तो वो पागल है, दीवाना है, या वो कोई देवता है. अगर कोई बंदा सोसाइटी के बगैर रहता है तो या तो वो पागल है या वो देवता है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, सॉरी अकॉर्डिंग टू प्लेटो. अगर प्लेटो का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आती है कि सोसाइटी एंड सोसाइटीज कल्चर, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट फॉर अ लर्नर. किस तरह वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी लर्नर के लिए. 3 aspects to word Vygotsky put an importance, or that one, first one culture, second one social interaction, and third one language. What is a culture? Culture just played a cognitive role to learn any aspect of that culture. And social interaction is much more important than individuals, and language is necessary to learn or acquire any language or any information. But here is some hands-on activities. Private speech अगर हम बात करते हैं is a form of self-talk that guides the child's thinking and action. अगर एक बच्चा तन तनहा सोचता है, तन तनहा बात करता है, तो वो उसे सोचने की अमल दे सकती है, कोई एक्शन करने की अमल दे सकती है. लेकिन उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन उसे सोसाइटी की जरूरत होगी, और उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन उसे सोसाइटी की जरूरत होगी, कल्चर की जरूरत होगी, और उस लैंग्वेज की, नॉर्म्स की, कस्टम की, ट्रेडिशन की जरूरत होगी दैट ही वांट टू इम्प्लीमेंट. जो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है उसके लिए डेफिनेटली कल्चर भी चाहिए, सोशल इंटरेक्शन भी चाहिए और लैंग्वेज भी चाहिए. इवन दो एक बंदा अकेले तन तनहा बात कर सकता है, नो डाउट ही कैन, वो कर सकता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए हमें सोसाइटी भी चाहिए, कल्चर भी चाहिए, और सोसाइटी के इंटरेक्शन के साथ साथ हमें लैंग्वेज भी चाहिए. कहते सपोज फर्स्ट करो, हेल्प चिल्ड्रन अक्वायर मोर नॉलेज देन पैसिव लिसनिंग. कि अगर एक बच्चा 10 बंदों के दरमियान बैठ के लर्निंग हासिल करता है, वो ज्यादा बेहतर सीखेगा बनिस्बत उस बच्चे को जो जस्ट ऑडियो सुनता है. And the most other principles or the aims that help to learn help to learn the concept of Vygotsky, that is zone of actual development, is also known as ZAD. That zone of actual development, where is the specified criteria or where is the specified places where a person or a child can actually develop his or her language. कौन सा सिनेरियो है, कौन सा वो पार्ट है जहां पर एक पर्सन या एक बच्चा अपनी लैंग्वेज को अक्वायर कर सकता है. When a child attempts to perform a skill alone, she may not be proficient at it. Confirm पक्की बात है. No one can tell him, no one can inform him how many misdeed or how many correction that you have that you want to correct or that you must have to correct. यहाँ पर एक पर्सन परफॉर्मेंस देता है, नो वन कैन टेल हिम और हर कि हाउ वाज हिज प्रेजेंट और हाउ वाज हिज प्रेजेंटेशन. अगर एक बच्चा क्लास में आता है
सुनने वाला कोई नहीं है और वो क्लास में आकर प्रेजेंटेशन देता है, उसे क्या पता उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। हाउ ही कैन ओवरकम द प्रोफिशिएंसी, वो कैसे प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकता है वो नहीं जानता, क्योंकि उसने जो बताया है वही सब कुछ उसके लिए है। उसने गलत कह दिया, सही कह दिया, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। इवन के चाइल्ड हिमसेल्फ डज नॉट नो, वो बजाते खुद वो बच्चा भी नहीं जानता कि उसने क्या किया। लिहाजा इसकी टू टाइप्स हैं, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिफाइंस दोज फंक्शन दैट हैव नॉट येट matured but are in the process। ये वो अमल होते हैं, ये वो काम होते हैं जो काम हो तो रहे होते हैं लेकिन मेच्योरिटी में नहीं आते। The gap between what a child can do alone and what a child can do with the help from adults or peers who are more capable than the child। एक बच्चा अकेला काम करता है और एक बच्चा किसी पर्सन की मौजूदगी में, किसी टीचर की मौजूदगी में, किसी आपके लो इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में काम करता है। कहता है जो बच्चे ने इंडिविजुअल लर्निंग हासिल की उस स्टेप से लेके उस स्टेप तक, जिस स्टेप के दरमियान वो किसी लर्निंग क्लास में जाता है, इसके दरमियान जो जोन होता है उसे हम प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। और जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती है वही बंदे को लीड करती है एक्चुअल लर्निंग की तरफ। और यहाँ पर अगेन बात को समझें, द गैप मतलब द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, जो बच्चा तनहा कर सकता है उस सफर से लेके व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद हेल्प फ्रॉम अडल्ट्स, उस पॉइंट तक जहां उसे किसी काम के करने के लिए किसी बंदे की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है। इन दोनों का जो दरमियान का जो डिस्टेंस पड़ता है, जहां पर वो अकेला काम कर रहा था वो पॉइंट, और जहां पर उसे कोई काम करने के लिए किसी पर्सन की, किसी इंस्ट्रक्टर की, किसी टीचर की, किसी बड़े की जरूरत पड़ी, वो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर? जाहिरुल्लाह, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होती है? अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट वो होते हैं जो कि फुली मैच्योर नहीं होते, ठीक है, जैसे कि बट प्रोसेस में होते हैं। मतलब सर इसकी एग्जांपल क्या होगी? तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर, मैंने अभी एग्जाम्पल नीचे ये कोड एग्जाम्पल और उसके क्राइटेरिया ही बताता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो क्राइटेरिया है, वो डिस्टेंस है, वो आपके लो सिनेरियो है, वो एरिया है जहां पर एक पर्सन अकेले काम करता था लेकिन उसे दूसरा काम करने के लिए किसी बंदे की जरूरत है। जहां वो अकेला काम करता था वहां से मेजर करें उस डिस्टेंस तक जहां पर उसे किसी काम को करने के लिए किसी पर्सन की हेल्प की जरूरत पड़ी है। तो ये दरमियान का जो पॉइंट है, ये जोन है, ये वो एरिया है, ये वो आपके लिए प्लेस है जहां पर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अक्कर होती है। आफ्टर ठीक दैट है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। और ये क्या कहता है? ये कहता है द सपोर्ट और असिस्टेंट दैट लेट्स द चाइल्ड अकम्प्लिश अ टास्क ही कैन नॉट अकम्प्लिश इंडिपेंडेंटली। पहले उसने बात की है एक बच्चा तनहा काम करता है, फिर कहता है उसे कोई ऐसा काम मिला जिसे करने के लिए उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। और जहां पर पहला काम किया वो और जहां पर उसे सपोर्ट पड़ी, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। लेकिन कहता है जो मदद उसे हासिल मिली उस टास्क को परफॉर्म करने की, वो स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। इन्वॉल्व्स जुडियस असिस्टेंस गिवन बाय द अडल्ट और पीयर। जो मदद उसे दी गई है, जो हेल्प उसे दी गई है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उस परफॉर्मेंस को स्कैफोल्डिंग हम कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग क्या कहता है? कहता है अडल्ट अनजिप द जिपर। अडल्ट जो होते हैं, बड़े बच्चे जो होते हैं, वो उसके पास एक बैग है और वो जिप को अनजिप कर देता है एन इंच और 2, 1 इंच तक या 2 इंचों तक। then holds the lunch bag so that the child can continue to unzip the lunch bag। एक बच्चे को जिप नहीं खोलना आती तो वो सारी जिप नहीं खोलता उस बैग की, उसे थोड़ी सी खोल के देता है और उसे अपना लंच बैग पकड़ा देता है उसका, कहता है लो बच्चे जिप खोलो और इसके दरमियान रख दो। अब बच्चे ने बकिया जिप खुद खोली है और उसका लंच बॉक्स जो था उसने भी वो भी अपने बैग के अंदर खुद रखा है। ये जो प्रोसेस है वो कहता है कि ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग।
फिर कहता है loosening the food container lid just a bit and letting the child open to lid himself. अगर आप उसके पास बॉक्स है और उसका ढक्कन खोलना है, आप सिर्फ उसका लिड को ओपन कर दें, बकिया उसके लिड को बिल्कुल वाइड ओपन ना करें, उसका लॉक खोल दें बस, और बच्चे से कहें ले बच्चे खोले, तो बच्चा खुद खोले। या आपके पास एक बोतल है, रेगुलर बोतल है, या आप कह लें कि आप कह लें कि 1/2 लीटर की बोतल है, ड्यू की लगा लें, स्प्राइट या फांटा कोक जो भी लगा लें, और बच्चा वो बोतल पीना चाहता है और वो बच्चा बोतल आपको पकड़ा देता है, क्यों? बिकॉज ही इज नॉट केपेबल इनफ टू ओपन दैट लिड, क्योंकि उसके ऊपर एक सील लगी होती है, बच्चा उसे नहीं खोल सकता। आप क्या करते हैं, उस बोतल को पकड़ते हैं और उसकी जस्ट सील को ब्रेक करते हैं, बकिया लिड को, बकिया कैप को कंप्लीटली राउंड अप करके ओपन नहीं करते, आप लिड को ब्लॉक उसका तोड़ देते हैं और बच्चे को पकड़ा देते हैं, और बच्चा बकिया लिड उसका खुद आपके लिए राउंड करके उसे ओपन कर लेता है। ये वो उसका फोल्डिंग है। क्यों भी कोमल? गेटिंग माय पॉइंट? Okay, next, scaffold and fade away technique. What is the concept of scaffold and fade away technique? Withdrawing the guidance when the child could not or could do on their own what they could not initially do without assistance. पहला कॉन्सेप्ट है कि फेड अवे टेक्निक क्या होती है, कि withdrawing the guidance when the child could do on their own that they could not initially do without assistance. Sometime ऐसा होता है कि हम बच्चे को बताते हैं, हम परफॉर्मेंस नहीं करके देते। पहले बच्चा उस काम को करने के लायक नहीं था, लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर ने, किसी बड़े ने उसे हिदायत दी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया, उसे प्रैक्टिस नहीं करके दिखाई। अब बच्चा कहता है मैं खुद कर सकता हूं, तो वो जो असिस्टेंट है या जो इंस्ट्रक्टर है उस बच्चे को वो काम करने देता है, तो वो बच्चा काम कर लेता है। तो वहां पर फेड अवे टेक्निक होगी, उस टेक्निक को हम फेड अवे टेक्निक कहेंगे, जहां पर इंस्ट्रक्टर मुकम्मल तौर पर कोई प्रैक्टिस किए बगैर उस बच्चे से काम करवा ले। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन टीचर की मौजूदगी आते ही बच्चा परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। ऐसे एस्पेक्ट जो वो अकेले नहीं कर सकता था, लेकिन किसी की मौजूदगी के आते ही उसने वो काम करना शुरू कर दिया, वो अमल जो है वो फेड अवे टेक्निक कहलाएगा, या उसे हम स्कैफोल्ड कहेंगे। अब यहाँ पर कहता है जी कि दो चीजें हैं, एक जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है और दूसरा है स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग क्या कहता है? नॉलेज अदर्स। जो जूम ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम दूसरों को देते हैं या दूसरों से लेते हैं, लेकिन जो स्कैफोल्डिंग है यहाँ पर हम टूल्स और टेक्निक देते हैं, दूसरों को बताते हैं या दूसरों से लेते हैं। व्हाट आई कैन लर्न ऑन माय ओन, तो ये टेक्निक्स कितनी इस्तेमाल होंगी या कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे, और व्हाट कैन आई लर्न विद द हेल्प, और जेड मतलब विद द हेल्प जो होगी उसे हम क्या कहेंगे। मतलब जब हम किसी की हेल्प के बगैर सीखेंगे तो वो अमला हमारे पास क्या अमल कहलाएगा, या जो हम अपनी बजाते खुद सीख लेंगे तो वो अमला हमारे पास क्या होगा। इट्स मीन हमारे पास तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट वन कल्चर है, सेकंड वन सोशल इंटरेक्शन है, थर्ड वन हमारे पास लैंग्वेज है। और इन तीनों की इंटरेक्शन से फर्स्ट वन हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग का निकलता है, और फिर उसके बाद हमारे पास स्कैफोल्ड या फेड अवे का कॉन्सेप्ट निकलता है। और इसी के दरमियान हमारे पास टू किस्म की जोन्स आती हैं, एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, और सेकंड वन जो हमारे पास थी वो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट थी। लेकिन जो ज्यादा परफॉर्मेंस देती है हमें वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसका कॉन्सेप्ट स्कैफोल्डिंग के साथ आगे बढ़ता है। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ विगोट्स्की? बेसिक थ्योरी विगोट्स्की की है क्या, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी वो क्या बात करना चाहता है। इसकी जस्ट 2 स्लाइड्स हैं, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा जरा। विगोट्स्की कहता है द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कहता है जो लैंग्वेज हमारे दिमाग में, कहते हैं ना यूनिवर्सल ग्रामर है, कहता है वो जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन की वजह से। जो हमें माइंड में हमारे जो लैंग्वेज आती है, जो इनबोर्न कैपेबिलिटीज हमें मिलती हैं, जो हमारी आदत बनती है, वो आदतें, वो कैपेबिलिटीज, वो लैंग्वेज के प्रोसेस, वो सारे के सारे इज द आउटकम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। दूसरी बात विगोट्स्की कहता है, claims that there is a strong connection between learning a language and development of thinking। जब लैंग्वेज को लर्न करते हैं या हम कोई चीज को सोचते हैं
कहता है इन दोनों के दरमियान गहरा ताल्लुक है। और गहरा ताल्लुक क्या है? थिंकिंग जो होती है वही हमें लैंग्वेज की तरफ लेके चलती है, और जब लैंग्वेज की तरफ लेके चलती है तो तभी डेवलपमेंट होती है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग इज द आउटकम और इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज लर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप थिंकिंग के ऊपर डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, आप लैंग्वेज को बढ़ाएंगे अपनी को। वो कहता है सोचो, सोचने की वजह से आपका जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा। मतलब कि वो आपकी प्रोसेस की वजह से, डेवलपमेंट थिंकिंग की वजह से आपकी लैंग्वेज इंक्रीज होगी। फिर थर्ड पॉइंट में कहता है हाईलाइट्स द रोल ऑफ मेंटर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि आप जो मेंटर है या जो इंस्ट्रक्टर है या जो पीयर्स है उसका जो किरदार है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर उसे हाईलाइट करना विगॉट्स की थ्योरी का तीसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये सोशल प्रोडक्ट और सोशल इंटरेक्शन से लैंग्वेज पैदा होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है उसका, दूसरा पॉइंट ये है कि थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग का लैंग्वेज लर्निंग के दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग नहीं होती तो लैंग्वेज लर्निंग भी नहीं होती। तीसरा पॉइंट ये है कि उस रोल को हाईलाइट करना है इस थ्योरी का, जो एक इंस्ट्रक्टर, जो एक टीचर या जो एक पीयर या अडल्ट्स किसी बच्चे को लैंग्वेज हासिल करने में अदा करता है, उस रोल की भी इंपॉर्टेंस विगॉट्स की थ्योरी के अंदर तीसरे पॉइंट पर आती है। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है कि हम उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं जो हम करना चाहते हैं लैंग्वेज को हासिल करने के लिए। फिर हमारा ज्यादातर फोकस इसका फिफ्थ पॉइंट है कि मेजर फोकस इसका विगॉट्स की थ्योरी का सोशल होता है, सोशल इंटरेक्शंस होता है, और 6.1 में वो एम्फोसिस देता है कल्चरल फैक्टर्स पर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। इट्स मीन विगॉट्स की जो थ्योरी है हमारे पास सामने जो आती है वो अमूमन हम इन 6 पॉइंट्स के अंदर इमर्ज कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट वन, कॉग्निटिव development is the result of social interaction. Second one, there is a strong connection between language development and thinking of development. And third one, there is a much more role of instructor. And fourth one, there is a language strategies or teaching strategies that help a learner to acquire any languages. And fifth one, there is a social interaction. And sixth one, the cultural factor and the development of cognitive language और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ये 6 पॉइंट्स हैं, ये विगॉट्स की थ्योरी का ओवरव्यू बयान करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।